Hello everyone, good morning. Yes, today we are going to study last chapter of your English reader, that is chapter number 15. The name of this chapter is The Choice is Yours. Okay, student. So in this chapter we will study about a man whose name Roshan Lal. Yes, he loved cars and he wanted to buy the fastest car. Okay, now we will study what kind of Roshan Lal was. Okay, so now the student, the choice is yours. So this term as a choice is yours used for saying that you disagree with what someone else has decided. हम बात करते हैं इसकी, ये कहने के लिए उपयोग किया जाता है कि the choice is yours. Okay, तो कि आप किसी और के निर्णय से क्या होते हैं, असहमत होते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं the choice is yours. Okay student, so before starting this chapter the question are given here. Which vehicles do you see around you? कि आप कौन कौन से व्हीकल अपने चारों तरफ देखते हैं? Yes, टैक्सी, कार, बाईसाइकिल. Okay, so now next question. Are there certain rules for driving vehicles? Yes, there are certain rules for driving a vehicle. Okay, now number third. Do you know how to drive a car? Says student, you know how to drive a car. So we will discuss in the end of the chapter. Okay. Now let's start the chapter. Let us read this story and understand the message it's convey. Okay. Once there lived a man named Roshan Lal. एक बार एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या है, रोशन लाल. He loved cars. उसको कार का बहुत शौक था. He used an old car that could run only at the speed of a cycle. मतलब वो ओल्ड कार यूज करता था जो that could run only, जो कैसे रन करती थी, कैसे चलती थी, at the speed of cycle. जैसे साइकिल की जो स्पीड होती है, क्या स्लो स्पीड होती है साइकिल की, वैसे ही वो अपनी कार को चलाता था. He saved money for years to buy a new car. उसने अपनी न्यू कार खरीदने के लिए उसने बहुत सारी मनी क्या करी, इसने सेव करी. At last the great day arrived. At last क्या हो गया, जो वो दिन क्या हो गया, आ गया. Arrived means क्या होता है कि वो दिन आ गया. Arrived हम इंग्लिश बोलेंगे टू रीच द प्लेस वेयर यू वर ट्रेवलिंग. ओके, सो हियर उस दिन की बात कर रहे हैं, तो हियर द ग्रेट डे अराइव्ड. ही हैड एनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री. अब उसके पास एनफ मनी थी, पर्याप्त पैसा था कि वो कार खरीद सके अपनी कंट्री की. यस, विच कार, यस, फास्टेस्ट कार इन द कंट्री. जो कंट्री की सबसे तेज जो चलने वाली कार है वो क्या कर सके, खरीद सके. He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. So he dressed carefully, उसने बहुत अच्छी तरीके से अपना ड्रेसअप लिया, अपने अपने कपड़े पहने for the moment. किस मोमेंट की, जब वो कार खरीदने जा रहा था. And reached the grand शोरूम, और वो कहाँ पर पहुंच गए, अपने जो जहां पर वो कार जो बाय करने जा रहे थे वो ग्रैंड शोरूम में पहुंच गए. He swooned with delight when he saw the red swanky sports car. Here the student swoon means क्या होता है, feel a lot of pleasure, means खुश होना. हिंदी में बोलते हैं खुश होना, with delight. When he saw the red, उसने देखा कि red कौन सी, swanky. Swanky means शानदार, yes, fashionable and expensive in a way that is intended to impress people. Okay, this is the swanky स्पोर्ट्स कार. तो उसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया. Soon the paperwork was over and the car was his. तो शीघ्र ही वो पेपर वर्क, जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं तो पेपर वर्क होता है, तो पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया और जो कार अब उनकी होगी. अब किसकी बात चल रही है, हियर इज, यस, रोशन लाल. The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things. Okay, this car could do. नाउ स्टूडेंट, यू नोटिस दैट द गाइड इन द शोरूम. अब देखिए, हम किसी भी व्हीकल, हम कोई भी बाय करने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, गाइड होते हैं जो हमको बताते हैं कि आपको इस तरीके से ड्राइव करनी है, इसके अंदर, इस कार के अंदर ये नए ऑप्शन है कि आपको ये यूज करना है. तो ओके, सो गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर सीट. उन्होंने क्या हो गया, ड्राइवर सीट पर बैठ के तो शो हिम द ऑल न्यू थिंग्स दिस कार. इस कार की सभी जो नई चीजें थी वो उनको बताने लगा. could do. But Mr. Roshanlal was so impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. जो मिस्टर जो रोशनलाल थे, जो उन वो क्या थे, बहुत ही इम्पेशेंट, मतलब उनमें धैर्य ही नहीं था. कहते हैं हम धैर्यहीन. यस, तो ड्राइव द कार हिमसेल्फ, मतलब उनमें धैर्य नहीं था कि वो ड्राइव खुद से ही ड्राइव करना चाहते थे. दैट ही वुडंट लिसन टू एनीथिंग द गाइड सेड. गाइड जो भी बोल रहा था वो उसको नहीं सुन रहे थे. Now he started the car and began to move.
ओके, उन्होंने कार स्टार्ट करी और मोड़ना शुरू करी। ओके, नाउ द गाइड yelled आफ्टर हिम। तो गाइड yell मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, चिल्लाना, एक हम बोलते हैं चीखते हुए, टू शाउट वेरी लाउडली। सो yelled here मीन्स टू शाउट वेरी लाउडली। कौन यील्ड किया, किसने यील्ड किया, गाइड ने, आफ्टर हिम, उसके पीछे। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। अब कौन बोल रहा है, ये गाइड बोल रहा है कि तुम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। एटलीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस बुकलेट इन द कार। जो कार की जो इंस्ट्रक्शन जो बुकलेट है, एटलीस्ट कम से कम आप उनको ही तो रीड कर लीजिए। नाउ मिस्टर रोशनलाल डिड नॉट पे अटेंशन। तो मिस्टर रोशनलाल ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। नाउ स्टूडेंट, ही कोस्टेड अलोंग द रोड अ सॉन्ग इन हिज हार्ट। So here costed means here student to travel in a car without using any power, or we can say engine, मतलब बिना इंजन बिना शक्ति के गाड़ी चलाना। ओके स्टूडेंट, सो ही कोस्टेड अलोंग द रोड, वो रोड पर क्या हो गए, वहां से चलाने लगा। अ सॉन्ग इन हिज हार्ट, मतलब उसके हृदय में क्या था, गाना था। मतलब क्यों, क्योंकि वो उस दिन क्या था, बहुत खुश था। Whenever he went, he noticed people smiling at him। जब मतलब उन्होंने देखा कि वो वहां से गया कार लेके, जब वो जा रहा था, उसने नोटिस किया कि पीपल उसको देख के हंस रहे हैं। नाउ ही थॉट दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार। वो सोचने लगा कि वो उसकी जो न्यू कार है उसको एडमायर कर रहे हैं। नाउ पुअर मिस्टर रोशनलाल, अब हम बेचारा रोशनलाल क्यों बोल रहे हैं, लोग उस पर क्यों हंस रहे थे स्टूडेंट, उस पर इसलिए हंस रहे थे कि उन जो कार है, उन्होंने कौन सी कार बाय करी, उन्होंने जो कंट्री की फास्टेस्ट कार थी, मतलब जो सबसे तेज चलने वाली कार थी, वो उन्होंने बाय करी। लेकिन उसको चला कैसे रहे थे, मतलब बिल्कुल एज ए साइकिल की स्पीड पर, जैसे वो अपनी ओल्ड कार को चलाते हैं। तो इसलिए लोग उनको देख कर हंस रहे थे और उनको बोल रहे थे पुअर मिस्टर रोशनलाल। नाउ ही डिडंट रियलाइज दैट दे वर स्माइलिंग फॉर अ टोटली डिफरेंट रीजन। उसको रियलाइज ही नहीं हुआ, ही रेफर टू है रोशनलाल, उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वे क्यों हंस रहे हैं, फॉर अ टोटली डिफरेंट रीजन। अब रोशनलाल तो सोच रहा था कि उसकी जो कार है, उसकी जो कार है बिल्कुल नई है, बहुत स्वैंकी है, बहुत अच्छी है ना। तो इसलिए उसको देख के लोग स्माइल कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन, उनका कारण हंसने का क्या था, बिल्कुल ही अलग था। उसका स्माइलिंग का उनका जो कारण था बिल्कुल डिफरेंट था। सो नाउ ही हैड ड्राइवन एन ओल्ड स्लो कार फॉर सो मैनी ईयर्स दैट ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू ड्राइव फास्टर। सो नाउ स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट ही हैड ड्राइवन एन ओल्ड। अब जो अपनी जो उनकी जो कार थी, वो कौन सी, अपनी जो पुरानी कार को चलाते थे, स्लो कार, बहुत धीरे चलाते थे फॉर मैनी इयर्स, मतलब बहुत सालों तक उन्होंने जो अपनी पुरानी कार थी वो बहुत धीरे चलाई थी। नाउ ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू ड्राइव फास्टर, और उन्होंने भूल गए थे कि फास्टर जो फास्टेस्ट कार है उसको कैसे ड्राइव करते हैं। सो नाउ ही वाज ऑन द रोड। नाउ अब वो क्या थे, रोड पर थे, ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। जो कंट्री की सबसे तेज, फास्टेस्ट मीन सुपरलेटिव डिग्री हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कंट्री की सबसे तेज जो दौड़ने वाली जो कार है, वो किस स्पीड पर चला रहे हैं, एज अ स्पीड ऑफ अ साइकिल, साइकिल की स्पीड पर चला रहे हैं। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी। कोई आश्चर्य नहीं था कि पीपल उनको कह रहे थे कि ये कितना फनी है, कितना मजाक हो रहा था उनका। नाउ स्टूडेंट, मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक रोशनलाल। तो बहुत से जो लोग होते हैं इस कंट्री के अंदर, वो किसकी तरह होते हैं, रोशनलाल की तरह होते हैं। ओके, so they have wonderful bodies and minds, but they do not want to listen to spiritual master who are like the guide in the car company. So here two senses here student in this lines। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग मिस्टर रोशनलाल की तरह होते हैं इस संसार में, उनके पास वंडरफुल बॉडीज भी होती है, माइंड भी होता है, बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर। अभी यहाँ बात चल रही थी जो स्पिरिचुअल, यहाँ पे जो उसका मास्टर है कौन था, उसका गाइड कौन था, गाइड उसको बता रहा था, रोशनलाल को बता रहे थे कि किस तरीके से कार चलानी है। एटलीस्ट वो बोला था इंस्ट्रक्शंस बुक तो आप रीड कर लीजिए, तो वो उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते थे। दूसरी तरीके हम जब बात कर रहे हैं पीपल की, दे डू नॉट वांट टू लिसन स्पिरिचुअल मास्टर, जो हमारे जो आध्यात्मिक जो मास्टर होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमको गाइड करते हैं कि हमको इस संसार में कैसे रहना है। सो नाउ हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी, जो किसकी तरह होते हैं, कार कंपनी का जो गाइड होता है उसकी तरह होते हैं, कि हमको अपनी जो बॉडीज है, जो हमारा जो माइंड है, उसको हमको किस तरीके से हमको रखना है, कैसे हमको वर्क करना है। लेकिन कई लोग रोशनलाल की तरह होते हैं जो उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सुनते। सो नाउ स्टूडेंट, नीदर डू दे वांट टू फॉलो एनी बुक्स ऑन रिलीजन एंड कल्चर विच आर लाइक इंस्ट्रक्शंस बुकलेट। सो वो कह रहे हैं कि जो वो लोग उसकी तरह होते हैं कि ना तो वे जो कोई भी बुक, रिलीजन की कोई भी जो बुक होती है, उनकी रिलीजन की बुक होती है, उनको वो स्टडी नहीं करते, वो उनको फॉलो नहीं करना चाहते। उनका जो कल्चर होता है, कल्चर के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करते हैं। विच आर लाइक, जो कि किसकी तरह थी, इंस्ट्रक्शंस बुकलेट। जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट हम बात किसी
से कर रहे हैं? रोशनलाल की जो गाइड ने बोला कि एटलीस्ट आप रीड तो कर लीजिए इंस्ट्रक्शन बुक, तो हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस बुकलेट की तरह। तो यहाँ पर टू सेंस हेयर यहाँ पर है कि कुछ लोग रोशनलाल की तरह होते हैं कि वो अपने गाइड की नहीं सुनते, वो बोल रहे हैं गाइड की इंस्ट्रक्शंस बुक तो आप कम से कम रीड कर लीजिए। वैसे ही सेम हम दूसरे सेंस में हम बात करते हैं कि रोशनलाल की तरह ही लोग होते हैं जो अपनी जो वंडरफुल जो बॉडीज और माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में, उनसे जो गाइड करते हैं उनके बारे में नहीं सुनते। एटलीस्ट वो हमारे जो रिलीजन बुक है, जो हमारा जो कल्चर है, उसको भी वो फॉलो नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दे डू नॉट नो हाउ टू यूज देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स वेल। वे नहीं जानते कि जो गॉड द्वारा जो हमको इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, हमको उसको किस तरीके से उसको यूज करना है। सेंस क्या रहा है? अब देखिए रोशनलाल की बात हो रही है। रोशनलाल को ये नहीं पता, कार चलानी तो उसको आती है, उसने नई फास्टेस्ट कार भी उसने बाय कर ली, उन्होंने खरीद ली, लेकिन उसको चलाना नहीं आता। वो किसकी स्पीड पर चला रहे हैं? साइकिल की स्पीड पर चला रहे हैं। सो दे डू नॉट नो, जो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिए रखे, आपको नहीं पता कि उसको कैसे यूज करना है। सो सेम लाइक हियर, से द अदर पीपल्स डू नॉट नो हाउ टू यूज देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट वेल। तो वो नहीं जानते कि गॉड ने जो हमको इंस्ट्रूमेंट दे रखे उसको किस तरीके से हमको यूज करना है। They end up leading miserable, boring और wasteful lives like Mr. रोशनलाल। तो वो अब क्या लीड करते हैं? मतलब जब वो किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, अपने कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, तो एंड में वो कौन सी लाइफ? मिजरेबल मतलब दुखी, बोरिंग, ओके, वेस्टफुल लाइफ्स जीते हैं। किसकी तरह जीते हैं? रोशनलाल की तरह। हु ड्रॉप द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल, जो अपनी जो हाई स्पीड कार को वो किसकी स्पीड पर चला रहे हैं? साइकिल की स्पीड पर चला रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अप टू सेंस समझ में आ गया कि वे लोग जो भी अपने कल्चर को नहीं फॉलो करते, अपने रिलीजियस बुक अपने रीड नहीं करते, उनके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, हमको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, लेकिन वो नहीं मानते, तो एंड में देखा जाता है कि वो उनकी जो लाइफ है वो एज ए मिजरेबल लाइफ हो जाती है, उनकी लाइफ वेस्टफुल हो जाती है। किसकी तरह? रोशनलाल की तरह। ओके, so now student, how would you like to be? Okay, the choice is yours. तो आप किसकी तरह रहना चाहते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। Okay student, the choice is yours. Now student, this chapter is about the choice is yours. Now student, discuss as a dictation word meaning, question answer of this chapter. Okay, let's start. The first dictation word is arrived. A-R-R-I-V-E-D. Arrived, which means to reach the place to which you were travel. Okay. Now second is enough. हम हिंदी में बोलते हैं उसको पर्याप्त. Yes, as much or as many of something as necessary. Number third, moment. Yes, moment, a very short period of time. Number four, swanky. Yes students, swanky, which means fashionable and expensive in a way that is intended to impress people. Okay. Number fifth, impatient. Impatient हमको हिंदी में बोलते हैं धैर्यहीन. Wanting something to happen as soon as possible. Clear? Yield. Yes student, yield, which means to shout very loudly. Number seven, attention. A-T-T-E-N-T-I-O-N. Attention means yes, listening or thinking about somebody. Clear? Number eight, instruction. I-N-S-T-R-U-C-T-I-O-N. Instructions मतलब आपको पता ही है, किसी को निर्देश देना. Yes, advice and information about how to do or use something. Clear? Number nine, costed. Yes, costed means to travel in a car without using any power. Yes, जब हम बात करते हैं किसी भी, हमको किसी भी चीज को रन करा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके बिना इंजन की, मतलब बिना इंजन की शक्ति के गाड़ी चलाना, which means costed. Number 10, admiring. Admiring, which means प्रशंसा करना, to look at something and think that is attractive. Okay, now number 11, realize. R-E-A-L-I-S-E. Yes, to realize, which means to know and understand that something is true. Number 12, forgotten. Yes, F-O-R-G-O-T-T-E-N. Forgotten, yes, means क्या होता है? Forgotten, हम भूल गए. Yes, to know, be able to remember something. Clear? Number 13, wonder. W-O-N-D-E-R. Wonder means क्या होता है? कई बार आश्चर्य. To want to know something, कुछ जानना. Clear? Number 14, spiritual. S-P-I-R-I-T-U-A-L. Spiritual means adhyatmic. Yes, relating to deep feelings and beliefs, especially religious beliefs. Okay.
Number 15, miserable. Miserable. Miserable, which means very unhappy, uncomfortable. Yes, in Hindi you can say dayaniya, dukhi avastha. Okay. Now let's start the one word meaning of this chapter. Yes. The very first word meaning is soon. Yes, a feeling a lot of pleasure. मतलब खुश होना. Number second, swanky. SWNKY. Yes, which means a fashionable and expensive in a way that is intended to impress people. कि मतलब कोई भी चीज जो भी शानदार है, हम किसी चीज हम जिसको हम impress करते हैं उससे लोगों को, जैसे swanky. Number third, impatient. Impatient, restless, adhare, dhairyहीन. Okay. Number fourth, admire. Yes, admire means impressive, to practice highly, to praise highly. मतलब किसी की हम प्रशंसा करते हैं. Okay. Number five, instructions. Yes, instruction which means निर्देश देना, as a teaching or order. Clear? Number six, miserable. Yes, which means very unhappy or uncomfortable. मतलब दुखी होना. Okay, clear? Now student, let's start the activity 1 of this chapter. One, A, choose the correct alternative. Number 1, Mr. Roshan Lal was yeah, and हम बोल सकते हैं oblique yes, funny person, intelligent person, kind person or impatient person. Yes, it's the impatient. Yes, answer is impatient person. Why? Because you know very well Mr. Roshan Lal did not listen, did not want to listen everyone. So here the correct answer is here impatient. मतलब उसको धैर्य नहीं था. Okay. Number second, God given instruments are. क्या है God given instruments हमको जो God ने दे रखे हैं? Yes, cars, booklets, body and mind or cycle. So here answer is here book, body and mind. Now let's start the true and false. Write T for true, T for the true statements and F for the false ones. Okay, number 1. Roshan Lal was fond of cars. Yes, Roshan Lal, yes, loved cars. उनको बहुत शौक था कार का. Yes, it is true. Now number 2. He listened to the guide patiently. No, it is false. अपने guide की बात सुनी ही नहीं थी. Yes, it is false. Number 3. People thought him to be a fool or funny man. Yes, people ने यही सोचा था कि कितना fool और funny man है, क्योंकि वो जो fastest car थी country की वो as a cycle की speed पर चला रही थी. Yes, is a fool or funny man. Number 4, books on religion and culture are like instructions booklet for us to lead a good life. Yes, it is true. जो भी बुक्स हमारे रिलीजन की होती है, जो हमारे जो कल्चर की होती है, जो हमको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमको अपनी अच्छी जिंदगी, अपनी जो अच्छी लाइफ किस तरीके से हमको बितानी है. Yes, it is true. Number 5, spiritual masters guide us to lead miserable, boring and wasteful life. Yes, कि हमको बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर के हमको गाइड करते हैं कि कैसे हमको मिजरेबल, बोरिंग और वेस्टफुल लाइफ को लीड करना है, बिताना है अपनी लाइफ को. नो, इट इज अ फॉल्स. ओके, स्पिरिचुअल जो मास्टर है वो हमको बताते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को हम क्या करें, किस तरीके से अपनी लाइफ को हम बेटर बना सकें. ओके, नाउ let's start the question answer of this chapter. Question number 1. Why did Roshan Lal buy a new car? Roshan Lal ने नई कार क्यों खरीदी? Yes, answer is Roshan Lal bought a new car because his old car could run only at the speed of a cycle, and also he loved cars and wanted to buy the fastest car. Okay, जो रोशन लाल ने एक न्यू कार खरीदी थी क्योंकि his old car could run only at the speed of a cycle, क्योंकि उसकी जो ओल्ड कार थी रोशन लाल की, जो उसकी किस स्पीड पर रन करती थी, और साइकिल की स्पीड पर. एंड ऑल्सो ही लव्ड कार, उनको कार का बहुत शौक था. यस, ही वांटेड टू बाय द फास्टेस्ट कार, इसलिए वो जो कंट्री की जो सबसे तेज दौड़ने वाली कार थी उनको बाय करना चाहते थे. Let's start the question number 2. Now why did he not pay attention to the guide? उन्होंने जो गाइड की जो गाइड था जो उनको बता रहे थे उनको अटेंशन क्यों नहीं दिया, उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? आंसर इज रोशन लाल was so impatient to drive the car that he did not pay attention to the guide. रोशन लाल इतने अधैर्य थे कि उस कार को चलाने के लिए, क्योंकि उनकी क्या थी, नई कार थी. सो उन्होंने अब जो गाइड जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दिया. Question number 3.
पुअर मिस्टर रोशन लाल. हाउ इज मिस्टर लाल पुअर? मतलब मिस्टर पुअर लाल मतलब बेचारे कैसे हुए? यस, आंसर इज मिस्टर रोशन लाल इज पुअर because he couldn't understand why the people were smiling at him. He thought people were admiring his new car. मिस्टर रोशन लाल को इसलिए बेचारा कहा गया क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि लोग उनके ऊपर क्यों हंस रहे हैं, उनके ऊपर क्यों मतलब हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं. उन्होंने सोचा पीपल वर एडमायरिंग हिज न्यू कार. वो सोच रहे थे कि पीपल क्या कर रहे हैं, उनकी जो न्यू कार है उसको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उनकी जो फास्टेस्ट कार थी, कंट्री की जो फास्टेस्ट कार थी, उसको एज ए किसकी स्पीड पर चला रहे थे? साइकिल की स्पीड पे. Go. Now, question number 4. What happens when we ignore a spiritual master? क्या होता है कि जब हम अपने जो spiritual master होते हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं? Answer: when we ignore spiritual master, we do not know how to use their God given instruments well. हम जब भी अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते कि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो गॉड गिवन जो इंस्ट्रूमेंट जो हमको दे रखे हैं, उसको किस तरीके से हमको हमको यूज करना है. तो गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? यस, बॉडी एंड माइंड. ओके, एंड वी लिव अ मिजरेबल, बोरिंग एंड वेस्टफुल लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, सो हमको क्या करना पड़ता है जब हमको इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते हैं, तो हम कैसे जिंदगी जीवन यापन करते हैं? एक मिजरेबल, दयनीय, बोरिंग, ओके, और वेस्टफुल. हमारी जो लाइफ क्या होती है, बिल्कुल वेस्ट हो जाती है. सो स्टूडेंट, सो आई होप you have to clear the question answer of this chapter. Now let's start the activity second. Okay, now fill in the blanks choosing appropriate words from the box. So student, books are given here and some words are also given in the box. So let's start. Number one sentence: Roshan Lal used and dash car. Roshan Lal कौन सी use करते थे car? Yes, the old car. Clear? Number second, he dressed carefully for the moment and reached the dash showroom. कहाँ पर पहुंच गए थे? Yes, brand showroom में पहुंच गए थे. Number third, he thought that they were admiring his dash car. Yes, he thought that they were admiring his new car. उन्होंने सोचा कि वो मेरी जो नई कार उसकी प्रशंसा कर रहे थे. Now number fourth, at long last the dash day arrived. मतलब बहुत समय के बाद at last में क्या आ गया था? कौन सा day arrived हो गया था? Yes, the great day arrived. Clear? Now student, look at the following words carefully. Okay, yes, totally, yes, nearly, carefully. Yes student, yes, you notice that ly. Okay, so total, total plus ly, near plus ly make a nearly, carefully, careful, careful, as plus we use as ly, so it become a carefully. Okay student, so now student, make new words by adding ly to words given below. आपके सामने words दे रखी हैं, अब उसके अंदर आपको ly आपको ज्वाइन करना है और उससे मिलकर नया वर्ड बनाना है. देखिए, बैड, वी मेक एज अ बैडली, badly, beautifully, yes, beautiful. Clear? Next word is hard, so make a hardly, hardly. Next is easy, so here we make a word easily. Next is love, so here we make a lovely, lovely. Next word is slow, so we make a word slowly, slowy. Okay student, clear? Now let's start the activity third. Look at these words and think about them. अब देखिए, हम words देखते हैं कि हम उसके बारे में सोचेंगे. Patient, तो हमने impatient, yes, I am plus patient. Okay, impatient. Patiently, so हमने add किया ly. Okay, now misuse, so हमने जो first है उसको miss को हमने use से पहले ही add किया. Okay, misuse. Now next word is useful, तो आप use plus full, तो आपने स्टूडेंट आप नोटिस कर रहे हैं कि you can see here the words are being formed by adding im, ly, mis and ful. Okay, now students, some of these words are being added in the beginning of the word and some are at the end of the word. Okay, आपने नोटिस किया कि कुछ words जो beginning में हम कर रहे हैं और कुछ हम क्या कर रहे हैं, हमने add किए हैं आपके word के last में. So now let's start the activity third. Now make new words by adding suitable prefix or suffix. Yes student, what is a prefix? Prefix, a group of letters
adding in the beginning of a word giving it a new meaning is called prefix. Clear? Prefix समझ में आ गया आपको? आपको क्या करना है, पहले ही आपको जो वर्ड है उसको ऐड करना है. कुछ लेटर्स हो सकते हैं जैसे I am, MIS, I am. Okay, clear? Now for example, immortal, so here we use as a prefix I am plus more moral, so immoral. Okay, now second, I am plus pure, make a word impure. Next is we make a word as a misguide, am misguide, so here miss is here as a prefix. Number fourth, misuse, here we use as a prefix miss before the word use, so make a misuse. Number fifth, impossible, so here we use I am as a prefix in the word. Yes, m make a word impossible. Number six, behave, the word is here behave, so we use a prefix as a make. Miss, here we make a word misbehave. Okay student, I hope you have to clear the prefix pehle. Okay, now suffix, what is a suffix student? Group of letters added at the end of a word giving it a new meaning is called suffix. Suffix क्या होता है कि हम कुछ जो letters हैं वो हम word के end में हम क्या कर देते हैं, add कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे suffix. For example देखिए, friend plus ly, so ly is here as a suffix. Okay, make a new word friendly. तो देखिए word का means क्या होता है, friend, दोस्त, है ना. अब हमने ly लगा दिया तो उसका मीनिंग क्या गया, फ्रेंडली, दोस्ताना. क्लियर? नंबर सेकंड, यूज, we use a full, okay, as a suffix, useful. और हमने पहले सब हमने प्रीफिक्स पढ़ा था तो हमने मिस यूज किया था तो मिस यूज, अब हमने सफिक्स यूज किया तो यूजफुल. क्लियर? Number third, weekly. Okay, so here word is where week. Okay, we use as a suffix ly, so we make a word weekly. Number four, slowly, slowly, so ly is here as a suffix. Number five, painful, so here suffix as a full, ful, so painful. Number six, ly, so where we use suffix ly, so word is here love, so we make a word lovely. Okay students, so I hope you have to clear these activities of this chapter. Okay, so tomorrow we will continue this chapter as we will do the unseen passage or we will do the passage of this chapter. Okay student.